एक सेकंड, नेटवर्क खराब है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली। अब GS2 गवर्नमेंट स्कीम्स, GS2 गवर्नमेंट स्कीम्स, GS2 गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ओके, गवर्नमेंट स्कीम्स। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी will play a big role, a big role in आत्मनिर्भर भारत, in आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत। तो हमें क्या करना है कि जो सोलर पैनल हैं और क्या कहते हैं उसकी बैटरीज होती हैं और उसकी वायरिंग जो होती हैं, वो सब चीजें बेसिकली इंडिया में बनाई जाए। तो इंडिया में एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो पीएम इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन मध्य प्रदेश। तो ये सोलर पावर प्लांट के ऊपर क्वेश्चन आना बहुत लाजमी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ ही सकते हैं। तो मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, इसे ध्यान से सुन लेना थोड़ा सा, ठीक है। Power plant in Madhya Pradesh today. Here's all you need to know about the power plant. The 750 megawatt ultra mega solar power plant. Everyone is able to listen the voice clearly? Say yes or no? मेरी नहीं, जो अभी वीडियो चला रहा हूँ उसकी। Which is spread over 1590 acres of land, is located in the Rewa district of Madhya Pradesh. The solar park has been developed by Rewa Ultra Mega Solar Limited, which is a joint venture of Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam Limited and Solar Energy Corporation of India. Central financial assistance of 138 crore rupees was provided to Rewa Ultra Mega Solar Limited for the development of the park. The project comprises of 3 solar generating units of 250 megawatts each, located on a 500-hectare plot of land inside a solar park with a total area of 1,500 hectares. So what sets this project apart from others? The Rewa Ultra Mega Solar Power Project is one of the largest single-site solar power plants in India and the world. The Rewa Solar Project was the first solar project in the country to break the grid parity barrier. Grid parity is the point when the cost of the alternative energy becomes equal to or less than electricity from conventional energy forms like fossil fuels. The solar plant will generate 750 megawatt electricity and was established with an investment of 4,500 crore rupees. Compared to prevailing solar project tariffs of approximately 4.5 rupees per unit in the early 2017, the Rewa project achieved historic results. The first year tariff of 2.97 rupees per unit with a tariff escalation of 0.05 rupees per unit over 15 years and a levelized rate of 3.3 rupees per unit over the term of 25 years. This project will also reduce carbon emission equivalent to approximately 15 lakh ton of carbon dioxide every year. It is the first project to get funding from the World Bank and Clean Technology Fund in India. With this, the World Bank has funded its first solar park in the country. The process of reverse auction and bidding for projects was tried for the first time in India under this project. It comprises 3-tier payment security mechanism, which is another first in India. So who will be the power buyers? It has 2 off-takers, Madhya Pradesh Power Management Company Limited and Delhi Metro Rail Corporation. The Rewa project has been acknowledged in India and abroad for its robust project structuring and innovations. Its payment security mechanism for reducing risks to power developers has been recommended as a model to other states. The project is also the first renewable energy project to supply to an institutional customer outside the state, that is Delhi Metro, which will get 24% of energy from the project, with remaining 76% being supplied to the state discoms of Madhya Pradesh. The Prime Minister tweeted about
about it, saying this project adds momentum to our commitment of increasing renewable energy capacities by 2022. Clean energy projects now account for more than a fifth of India's installed power generation capacity. India has 34.6 gigawatt of solar power and aims to have 100 gigawatt of such capacity by 2022. The government believes the River project will help it achieve this target. Sorry. So solar energy will play big role in Atmanirbhar Bharat, Prime Minister. तो आप सभी को मैंने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री दिखा दी, ठीक है. So यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या राइज करेंगे, नो अबाउट द की फैक्ट्स ऑफ रेवा सोलर प्रोजेक्ट, objective and significance, India's solar potential, and how India can be self-reliant in renewable energy. ठीक है. इंडिया बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी पड़ता है, ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ टू 32 डिग्री नॉर्थ, ठीक है. तो इस एरिया में इंडिया पड़ता है, तो ये ट्रॉपिकल रीजन होता है और यहाँ पे सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं होती है इस ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है. तो हम क्या देख रहे हैं अब, सोलर एनर्जी इज बेस्ट, कैन बी बेस्ट यूटिलाइज इन इंडिया. सोलर प्रोजेक्ट हमने बेसिकली कर लिया है. तो अब हम नेक्स्ट करते हैं GS1 ज्योग्राफी. GS1 ज्योग्राफी 14%, so 14%, 14% excess rain in India so far this monsoon. ठीक है. 14% excess rain अब तक हो चुकी है. 14% GS1 ज्योग्राफी, GS1 ज्योग्राफी 14% excess rain in India so far this monsoon, yeah, this monsoon. So यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या राइज करेंगे, learn about Indian monsoon phenomenon. So learn about Indian monsoon phenomenon, Indian monsoon phenomenon and causes of monsoon, okay, causes of monsoon, branches of monsoon, and role of monsoon in Indian economy, and role of monsoon in Indian economy, ठीक, इंडियन इकोनॉमी. तो ये हम मानसून देखते हैं अभी, ठीक है. तो मानसून बेसिकली होता क्या है, अभी हम देखिए मानसून किस तरीके से आता है, ठीक है.
यहाँ से जनरेट होता है मानसून, और इस तरफ से ट्रेवल करते हुए और फिर यहाँ पे आता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मानसून यहाँ से जाता है और बे ऑफ बंगाल से अपना वाटर उठाया, बे ऑफ बंगाल से अपना वाटर उठाया, फिर इधर की तरफ को चलना शुरू कर देता है बिकॉज ऑफ हिमालयाज यहाँ पे चलना शुरू कर देगा। अदरवाइज अगर हिमालयाज नहीं होते तो हमारे यूपी के रीजन में कभी भी बारिश नहीं पड़ती। ठीक है, यूपी के रीजन में कभी भी बारिश नहीं पड़ती। ये यहाँ से निकलता और सीधे चले जाता, सीधे मतलब सीधे चाइना की तरफ जाता अगर हिमालयाज बीच में नहीं होते। because of Himalayas, we are having monsoon, we are having crops, we are having agriculture, good agriculture, and we are having मतलब everything is because of monsoon। ठीक है, जो कुछ भी है उत्तर प्रदेश और इन सब रीजन में तो खास तौर पे वो मानसून की बदौलत ही है। ठीक है, रोटी खाना खाने के लिए जो कुछ भी है हमारे पास। ओके, तो इसमें हम दो चीज का ध्यान रखेंगे, एल नीनो और ला लीना। ये दोनों वर्ड आप लिख लीजिएगा, एल नीनो एंड ला लीना, ला लीना। ये कंसेप्ट मैं आपको कल एक वीडियो के तौर पे समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पेज नंबर 6, GS3 इकोनॉमी। GS3 इकोनॉमी, do we need a fiscal council? Do we need a fiscal? Do we need a fiscal council? Okay. Do we need a fiscal council? Page number 6, GS3, GS3 economy, GS3 economy. Okay. Do we need a fiscal council? Do we need a fiscal council? A fiscal council. So यहाँ पे क्वेश्चन क्या राइज करता है, in view of mounting debt, in view of mounting debt due to pandemic, in view of mounting debt due to pandemic, which further widening the fiscal deficit, the fiscal deficit, okay, the fiscal deficit. Why it is believed that fiscal council is the need of the hour, is the fiscal council is the need of the hour, is the need of the hour, question mark. Its mandate and various recommendation, its mandate and various recommendations, recommendation, okay, its various mandates and recommendation in this regard, okay. An institutional behemoth with such a wide job chart will likely add more to the noise than the signal। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली हमारे इंडिया में फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से क्या कहते हैं, हमें काफी ज्यादा लोन मतलब काफी ज्यादा लोन लेना पड़ रहा है इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हमें लोन लेना पड़ रहा है। अबाउट 50 countries around the world have established fiscal councils with varying degree of success। ठीक है, तो फिस्कल काउंसिल बना के ज्यादातर नेशंस ने अपनी जो फिस्कल डेफिसिट है उसे कम किया है, और आगे आने वाले टाइम में मतलब ये चीज हमें बेसिकली बनाना चाहिए कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन हो, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो हमारे फिस्कल डेफिसिट का ख्याल रखे
और हमारे ऊपर जितना भी कर्जा हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट मतलब एक तरीके से कर्जा, ठीक है, जो कर्जा हो रहा है उसका अच्छे से प्लान बना सके, जैसा हमारा एक बजट का प्लान बनता है, सेम उसी तरीके से फिस्कल काउंसिल्स भी अपने क्या कहते हैं वेरिंग डिग्रीज पे अपने काम करे और अच्छी तरह एक और डिपार्टमेंट बनाने की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, एक और डिपार्टमेंट बनाने की बात हो रही है। और यूपीएससी में अब ईपीएफओ, ठीक है, ईपीएफओ की भी अब जगह निकलनी शुरू हुई है। तो आप ये देखिए कि क्या कहते हैं अब जो आने वाला टाइम है उसमें बेसिकली क्या क्या डिपार्टमेंट सबसे मायने रखेंगे, इकोनॉमी, इकोनॉमी प्लस क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू साइबर वर्ल्ड। अगर आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप तो कोई टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन भी नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि साइबर सिक्योरिटी की भी जरूरत है हमें। तो आने वाले टाइम में बेसिकली हर एक चीज जो डिफाइन होगी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी, इन बेसिस पे ही काम किया जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंटली एक्सेस द गवर्नमेंट फिस्कल प्लान्स एंड प्रोजेक्शंस अगेंस्ट, तो इन्हें इंडिपेंडेंट वो इंडिपेंडेंट हैंड दिया जाए कि भाई क्या कहते हैं आप इंडिपेंडेंटली इसका पूरा ब्यौरा ले सकते हैं, ठीक है। और व्हाट इज दिस फाइनेंस कमीशन एंड द देन एफआरबीएम, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी, हेडेड बाय एनके सिंह, ओके, एनके सिंह का नाम याद रख लेना। सो नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट इज जीएस2 पॉलिटी। ये फिस्कल डेफिसिट वाला कंसेप्ट मैं आपको किसी दिन पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसके ऊपर ही दूंगा, ठीक है। सो जीएस2 पॉलिटी, इन द नेम ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, in the name of cooperative federalism, okay, in the name of cooperative federalism। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेसिकली मतलब क्या होगा है कि जो सेंटर है वो स्टेट की भी बातों को सुने, द सेंटर शुड लिसन टू द स्टेट कंसर्न, स्टेट का जो भी कंसर्न है उसके ऊपर विचार विमर्श करे और पब्लिक मीटिंग हो, पब्लिक गैदरिंग हो, ठीक है, और उनके इश्यूज जितने भी हैं, स्टेट के इश्यूज जितने भी हैं वो सॉल्व करने की कोशिश की जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने काफी लंबे टाइम तक देखते आए थे कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट जो था, तो वो दो डिफरेंट स्टेट्स में डिस्प्यूट चलता रहा, ठीक है। तो उसमें क्या था कि क्या कहते हैं हमें स्टेट्स के कंसर्न भी लेने चाहिए, और एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ काफी जगह पे डिस्प्यूट होते रहते हैं, तो इसलिए हमें स्टेट का कंसर्न, हर एक स्टेट का कंसर्न लेना चाहिए और उनके मैटर्स को सॉल्व करना चाहिए। व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेसिक मतलब यही होता है, द सेंटर शुड कोऑपरेट विद स्टेट इश्यूज, मतलब सेंटर को जो है वो स्टेट इश्यूज के साथ हैंडल करना चाहिए। तो क्या है कि फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड अल्कोहल आर नॉट इन जीएसटी, तो जीएसटी के अंडर आते नहीं है पेट्रोल और अल्कोहल, तो स्टेट कैन वेरी देयर टैक्सेस, तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश ने अपने पेट्रोल का रेट कर दिया कितना, 15 रुपीज लेस कर दिया, 15 रुपीज लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल दिल्ली का पेट्रोल है 70 रुपीज और यूपी का 15 नहीं 10, राउंड फिगर्स में लेके चलते हैं हम, 10 रुपीज कम कर दिया, ठीक है, तो 60 रुपीज पर लीटर उत्तर प्रदेश का हो गया। अब बिकॉज ऑफ वैट उत्तर प्रदेश ज्यादा नहीं ले रहा, तो क्या हुआ कि इससे फाइनेंशियल लॉस किसको हो जाएगा, दिल्ली को। क्यों? क्योंकि जो नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव है और ये सब रीजन है, ठीक है। यूपी की बात करते हैं हम तो नोएडा, गाजियाबाद और वैशाली, ये जो रीजन है ये यूपी के बॉर्डर करते हैं दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से बॉर्डर करते हैं। तो क्या होता है कि पब्लिक आती है और अपनी कार का टैंक फुल करवाया, और क्या कहते हैं नोएडा इज नॉट दैट मच फार फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, तो नोएडा में आए और उन्होंने पेट्रोल का टैंक फुल करवाया और घर वापस अपनी दोनों गाड़ी लेके आए और घर वापस, और फिर दिल्ली का पेट्रोल बिकेगा नहीं, तो स्टेट के पास इस तरीके से स्टेट के
क्या किसमें चली जाती है, डेफिसिट में, स्टेट डेफिसिट में चले जाता है, तो इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है अदर स्टेट्स को। तो इस स्टेट्स के ऐसे ऐसे इश्यूज हैं, तो हमें क्या करना होगा आने वाले टाइम में, हर एक चीज को जीएसटी के अंडर लेके आना चाहिए, ठीक है, हर एक चीज को जीएसटी के अंडर लेके आना चाहिए, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वेल्थ है वो स्टेट के पास अच्छी तरीके से पहुंचे, ताकि स्टेट अगर ज्यादा पॉपुलेशन वाला है उसको उसके अकॉर्डिंग पैसा दिया जाए, स्टेट अगर क्या कहते हैं ज्यादा मतलब उसकी खुद की इकोनॉमी काफी ज्यादा है तो उसे थोड़ा कम दे दें। तो इस तरीके से हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग जनरेट करनी पड़ेगी। रिचेस्ट स्टेट मतलब हाईएस्ट इकोनॉमी जनरेट करने वाला स्टेट इस साल कौन सा है, आंसर करो मेरे को जल्दी, मतलब हाईएस्ट इकोनॉमी जनरेट करने वाला स्टेट कौन सा इस साल, शॉर्ट फॉर्म में आंसर करो मेरे को। नॉट गुजरात, महाराष्ट्र, एग्जैक्टली। आप सभी जानते होंगे कि मुंबई इज नोन एज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, तो महाराष्ट्र बेसिकली मुंबई की वजह से जीता हुआ है। एक्चुअली में महाराष्ट्र का एक एक रीजन तो हो गया अमेरिका, मतलब मुंबई का रीजन हो गया अमेरिका, और महाराष्ट्र का एक रीजन हो गया बेसिकली नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया से भी बदतर हालात हैं एक रीजन के, मतलब आधा रीजन लेफ्ट साइड वाला मतलब वेस्टर्न साइड वाला आधा रीजन जो है वो तो हो गया इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा सफिशिएंट, ठीक है, और जो इधर वाला रीजन है वहां पे फार्मर्स सुसाइड करते हैं, बहुत ज्यादा सुसाइड होता है फार्मर्स का। ईस्टर्न रीजन है महाराष्ट्र के, हाफ हाफ ऑफ द ईस्टर्न रीजन, और बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं कि महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पूरे स्टेट में बिल्कुल भी इक्विवेलेंट नहीं है। मुंबई इज हैविंग हाई प्लेजर, मतलब सबसे ज्यादा प्लेजर जनरेट कौन कर रहा था, मुंबई। अब कोरोना में सब बंद पड़ा, करो और इकोनॉमी जनरेट, ठीक है, मरोगे तो भी तुम ही। तो जब तुम क्या कहते हैं रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो हमेशा नुकसान नेचर को हो रहा होता है उस रीजन का, ठीक है, उस रीजन में नेचर को नुकसान होगा, तो आपका बैलेंस करने के लिए एक रीजन से दूसरे रीजन का बैलेंस हो ही जाएगा, नेचर किसी ना किसी दिन बैलेंस कर ही देगा। तो डोंट बिकम ग्रीडी, if you are economically sufficient, तो try to donate those who are needy, ठीक है, those who are in need, try to donate. So next is GS2 polity. मैंने आपको रणवीर सिंह कमेटी करवाया था, ओके, रणवीर सिंह कमेटी, रिफॉर्म विद कॉशन, रिफॉर्म विद कॉशन, ठीक है, रिफॉर्म विद कॉशन, ओके। रणवीर लर्न अबाउट रणवीर सिंह कमेटी, जो मैंने आपको कल या परसों करवाया था शायद, दो तीन पिछली 2-3 क्लास में शायद करवाया था मैंने ये, रिफॉर्म विद कॉशन, रिफॉर्म विद कॉशन, GS2 पॉलिटी की ये न्यूज है, GS2 पॉलिटी, GS2 पॉलिटी की ये न्यूज है, रिफॉर्म विद कॉशन, कॉशन। सो लर्न अबाउट, क्वेश्चन इज रणवीर सिंह कमेटी, रणवीर सिंह कमेटी, नो अबाउट रणवीर सिंह कमेटी, ओके। तो रणवीर सिंह कमेटी के बारे में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ में जो क्या कहते हैं बेसिकली ये जुडिशियल रिफॉर्म्स के तौर पे एक तरीके से देखा जा रहा है कि और हाँ, आप सभी को एक चीज लिखवा देता हूँ मैं, ठीक है। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स और पुलिस रिफॉर्म्स ये सब चीज का मिक्सचर है, ठीक है। एक चीज लिखना, आईपीसी इंडियन पीनल कोड ये कौन से ईयर में आया था, 1860,
रणवीर सिंह कमेटी में इन सब चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। आईपीसी 1860 इंडियन पीनल कोड 1860। नेक्स्ट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीसीपी रीरिटन इन 1973। कब रीरिटन किया गया था इसका? 1973। एंड इंडियन एविडेंस एक्ट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ओके, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC rewritten in 1973 and Indian Evidence Act 1872. Indian Evidence Act 1872. इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो क्या है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो काफी पुरानी हो चुकी है, तो उसमें रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ओके, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, criminal procedure that was rewritten in 1973। तो हमें इन सब चीज में क्या करना है कि रिफॉर्म्स की जरूरत है। ठीक है, रिफॉर्म्स करने की जरूरत है बेसिकली। तो अब इतने पुराने अगर लॉज चलते जाएंगे तो हमारा रिफॉर्म्स की बातें हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें इनमें चेंजेस लाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। बट क्या होता है कि जब भी हम सिस्टम को छेड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वी आर नॉट दैट मच मैच्योर स्टिल इनफ। ठीक है, हम अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि क्या कहते हैं, हम जो ब्यूरोक्रेसी मतलब द ग्रेट ब्यूरोक्रेसी लेफ्ट आउट बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया, मतलब जो जिस तरीके की ब्यूरोक्रेसी ब्रिटिशर्स भारत में छोड़ के गए हैं, आई थिंक इट विल रिमेन कंटिन्यू अप टू नेक्स्ट 40 to 50 years मिनिमम। ओके, सो हमें एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा जनरेट करनी होगी और उसे डीप अंडरस्टैंडिंग जनरेट करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो डीप अंडरस्टैंडिंग जनरेट करनी पड़ेगी। तो बेसिकली अभी हम ज्यादा छेड़खानी ना करें एकदम से, बिकॉज क्या होता है कि जब भी हम कुछ चीज छेड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, हमने सिटीजनशिप में अमेंडमेंट करा, तो थोड़ा छोटी छोटी सी अमेंडमेंट होती है, उनमें ही इतने बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं। तो अगर हम छेड़खानी करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज में, गवर्नमेंट की वर्किंग में, तो उससे नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज GS3 environment, page number 8, GS3 environment। page number 8, GS3 environment। A new law in man animal conflict, says Supreme Court, sends notice to Kerala and center। ठीक है, a new law। तो मैन और एनिमल्स के कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इस साल कहते हैं हमारे स्नेक बाइट का भी आया कि भाई इंडिया में स्नेक बाइट से मैक्सिमम डेथ होती है। तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, रिसेंटली केसेस ऑफ यूज ऑफ एक्सप्लोसिव, ठीक है, आप सभी ने देखा होगा एक्सप्लोसिव का केस का, एक्सप्लोसिव वाला केस। तो उसी केस के ऊपर ये बात करी जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, नो अबाउट इश्यूज ऑफ एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली देखना है कि हमें कि इसमें दिक्कत क्या क्या आ रही है एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है, बिकॉज वी ह्यूमंस आर, मतलब हम पॉपुलेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं, फॉरेस्ट का एरिया कट करते जाए काटते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन काटते जा रहे हैं, और हम उनके ही घर में घुसते जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम घर में घुसेंगे तो दे विल अटैक और दे विल इंटरेक्ट विद अस इन एनी वे, और इंटरेक्शन जैसे ही बढ़ता है हमारा और वाइल्ड एनिमल्स का, तो दे आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ वायरसेस फॉर विच दे पर्सनली हैव इम्यूनिटी, बट वी डोंट हैव दैट इम्यूनिटी। ठीक है, तो हमारे पास वो इम्यूनिटी नहीं होती है। तो क्या है कि वो चीज हमारे अंदर एज अ वायरस के तौर पे, एज अ बीमारी के तौर पे हमारे अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है,
तो मैन और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को हमें ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना पड़ेगा आने वाले टाइम में, और मैनेजमेंट अच्छे से अच्छा करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस। ये है फर्स्ट फेज ऑफ डिसएंगेजमेंट, फर्स्ट फेज ऑफ डिसएंगेजमेंट कंप्लीटेड, डिसएंगेजमेंट कंप्लीटेड हो गया है। तो ये बेसिकली चाइना इशू है, और चाइना इशू हम करते आ रहे हैं। फर्स्ट फेज ऑफ डिसएंगेजमेंट कंप्लीटेड, ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। नो अबाउट चाइनीज इंट्रूजन अक्रॉस LAC एंड एट गलवान, अबाउट इंडिया चाइना रिलेशंस, व्हाट इज LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, मैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर है, जिसे इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर दिया है कि भाई ये हमारा और आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है। बट चाइना अभी उसे मानते नहीं है, आगे आने वाले टाइम में शायद हम ना माने, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स गेट्स, नेक्स्ट इज GS3 डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। इंडियन एयरफोर्स gets 5 Apache helicopter, AH-64E Apache attack helicopters from Boeing कंपनी के द्वारा हमें ये मिला है। तो की फैक्ट्स अबाउट अपाचे जो है वो काफी अटैक हेलीकॉप्टर है और काफी बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। बोइंग हैड हैंडेड ओवर लास्ट ऑफ द 5 AH-64E Apache attack helicopters to the Indian Air Force, completing the contract of for 22 Apaches, ठीक है, 22 Apaches। तो बेसिकली हमें ये चीज देखनी होगी कि हेलीकॉप्टर जो है उनकी हमें इमेज क्लियर होनी चाहिए, कि कई बार क्या होता है कि हेलीकॉप्टर कोई और था, हम इमेज कोई और सी देख लेते हैं, ठीक है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, दीज आर स्लिम, ठीक है, स्लिम आप देख सकते हैं कि ये बहुत स्लिम है, स्लिम हेलीकॉप्टर्स एंड दे आर रेडी टू अटैक, ठीक है, रेडी टू अटैक हेलीकॉप्टर्स। एन AH-64E Apache helicopters at the induction ceremony of Pathankot on Friday. Yeah. Indian Air Force gets 5 AH-64E Apache attack helicopters from Boeing. तो की फैक्ट्स हमारी ये हो चुकी है इसके द्वारा। नेक्स्ट इज GS3 एनवायरमेंट। अब GS3 एनवायरमेंट, फ्रेश पुश फॉर पेडल पावर इन स्मार्ट सिटीज। तो स्मार्ट सिटीज का कंसेप्ट अभी आने वाले टाइम में बहुत लेट आएगा, तो हमें ये इन बातों को समझना होगा कि स्मार्ट सिटीज अभी आसपास का प्रोजेक्ट नहीं है। तो बेसिकली हमें क्या देखना है कि नो अबाउट द स्मार्ट सिटीज मिशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रमोटिंग साइकिलिंग इन द सिटीज, ठीक है। तो साइकिलिंग के लिए प्रमोशन करना जरूरी है, तो स्मार्ट सिटीज में ये न्यूज है। फ्रेश पुश, फ्रेश पुश, तो ये कौन से पेज की न्यूज है, पेज नंबर 10 की ही न्यूज थी, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट न्यूज इज next news is page number 14, GS2 international relations, international relations, okay. China US in new spat over Uyghur crackdown। उइघुर मुस्लिम्स का मैंने आपको मुद्दा क्लास की स्टार्टिंग में समझा दिया था, ठीक है। उइघुर मुस्लिम्स कौन है और किस रीजन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो चाइना है इनके ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार करता है, तो ये चीज हमने क्लास की स्टार्टिंग में कर ली थी, ठीक है। फ्रांस आस्क्ड इजराइल टू ड्रॉप वेस्ट बैंक एनेक्सेशन प्लान। Turkey turns iconic museum Hagia Sophia into mosque. Hagia Sophia into mosque. Hagia Sophia into mosque.
ठीक है, इसका नाम लिख लेना, आगिया सोफिया मॉस्क। ठीक है। फ्रांस आस्क इजराइल टू ड्रॉप वेस्ट बैंक। मैंने आप सभी को वेस्ट बैंक वाला इशू समझाया था कि इसराइल और पैलेस्तीन में जो एरिया है, वो वेस्ट बैंक का एरिया ऑक्यूपाई करना चाह रहा है इसराइल। तो बेसिकली अब फ्रांस ने क्या बोला है कि इसराइल को ये आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए कि आप जो पैलेस्तीन है उसका वेस्ट बैंक का एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, और हमें